welcome to our online service. नमस्ते और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन सभा में। And I'm sure you've been having a fun night. और मैं जानता हूँ कि आपका समय जो है बहुत ही अच्छा है अभी। I'm sure you've been laughing a lot from your icebreakers, you know. और मैं आशा करता हूँ कि आप आइस ब्रेकर के दौरान बहुत हंस रहे हो। Isn't Connect Group fun? क्या कनेक्ट ग्रुप मजेदार नहीं है? I love Connect Group. मुझे बहुत पसंद है कनेक्ट ग्रुप। Alright, let me move ahead and let me welcome you all to our service tonight. ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस सभा में। And especially I want to welcome anyone who's watching this video for the first time. और जो कोई भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। And if you're first time at a Connect Group, why don't you clap hands and welcome them as well? यदि आप कनेक्ट ग्रुप में पहली बार आए हो, यदि कोई नया इंसान है वहाँ पर, तो क्यों ना आप तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। And a big hello to you from IC Mumbai family. और आईसी मुंबई के परिवार की तरफ से आपके लिए एक बड़ा सा नमस्ते। If you're watching this video for the first time, why don't you click on the link in the comment section? यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो ऑनलाइन, तो क्यों ना आप लिंक में कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करें। And what we'll do is one of our leaders, one of our team members will contact you just to say hello and give you more details about IC Mumbai. और हमारी टीम में से एक व्यक्ति आपके संपर्क में रहेगा और आपको अधिक जानकारी देगा। All right, let's move ahead, Jenny. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे I'll विंस्टन। quickly share something from the Word of God around the tithes and offering. और मैं जल्द ही कुछ बांटना चाहूँगा भेंट और दशमांश के बारे में वचन से। And today I want to talk about tithing. और आज की शाम मैं दशमांश के बारे में बात करना And those चाहूँगा। of you who don't know what is tithing, it's 10% of what you earn. और जिनको नहीं पता है दशमांश क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी कमाते हो, जो भी आपकी आमदनी है, उसका 10वां अंश है, यानी कि 10%। It's not only any 10%, it's the first 10% of what you earn. और हाँ, ये कोई भी 10% नहीं है, ये आपकी जो कमाई है उसका पहला 10%। And what you need to do is you need to bring it into the house of God. और आपको क्या करना है कि आपको जो है प्रभु के भवन में लेकर आना है Because the उसे। word of God says it belongs to God. क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि वो प्रभु का है। And when you do that, you will see blessings coming into your life. और जब आप वो करोगे और आप ये पाओगे कि आपको जो है आशीषें मिल रही है प्रभु से। I don't want to extend by sharing anything more, but let me tell you, I've been blessed. Jenny and I have been so much blessed by doing that. मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा इसके बारे में, लेकिन मैं सच में आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि मैं और विंस्टन बहुत ही आशीषित हुए इस दौरान। So make sure that you are tithing in the house of God. तो ध्यान देना कि आप जो है दशमांश प्रभु के भवन में ज़रूर बोते हो। And on top of it, if you're giving offerings, that is an awesome thing as well. और उसके ऊपर यदि आप भेंट देते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है वो। And right now, if you want to give offering, let me tell you, there are some details on the screen which you can take note of, and you can give online as well. तो इस समय यदि आप ऑनलाइन देना चाहोगे तो आप स्क्रीन पर कुछ जानकारी दी जाएगी, तो आप क्यों ना उसे नोट डाउन कर लें। And make sure if you're giving in cash, why don't you give it to your Connect Group leader? और यदि आप अगर रकम देना चाह रहे हो, कैश देना चाह रहे हो, तो क्यों ना आप अपने कनेक्ट ग्रुप लीडर को जो है कांटेक्ट करें। And you can also call the Connect Group leader. If you're not at a Connect Group, you can call them and tell them that you have cash, and they'll make sure that they collect it from you. यदि आप कनेक्ट ग्रुप में नहीं हो तो आप कनेक्ट ग्रुप लीडर को जो है संपर्क कर सकते हो और आप उन्हें बता सकते हो कि आपको जो है प्रभु के भवन में आपका भेंट या फिर दशमांश देना है। All right, let us all right now stand up and worship God together. ठीक है, इस समय क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और प्रभु की आराधना करें। Lord Jesus, we welcome you. Oh, we welcome you, Jesus. We welcome you, Lord. Close enough to feel your touch. I'm in between your loving arms. Worship is my heart's response. You're all I want. You're all I want. Oh, Jesus. Close enough to see your face. I'm caught in your eyes, your
my name, you call my name. करीब मैं आता हूँ, सब कुछ दूँ तुझे, स्तुति दूँ तुझे, आशीष भी दूँ तुझे, हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु, ओ तेरे प्यार में यीशु, ओ जीसस। Close enough to hear you speak, abide with me in fields of grace. Your presence, Lord, is all I see. You're all I want, you're all I want. करीब मैं आता हूँ, सब कुछ दूँ तुझे, स्तुति दूँ तुझे, आशीष भी दूँ तुझे, हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु। करीब मैं आता हूँ, सब कुछ दूँ तुझे, स्तुति दूँ तुझे, आशीष भी दूँ तुझे, हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु। तेरे प्यार में यीशु। महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं, देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर, विश्वास बढ़ रहा, स्तुति दिल मेरा दे प्रभु, तू मेरा सब कुछ है। महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं, देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर, विश्वास बढ़ रहा, स्तुति दिल मेरा दे प्रभु, मेरा सब कुछ है। महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं, देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर, विश्वास बढ़ रहा, स्तुति दिल मेरा दे प्रभु, मेरा सब कुछ है। करीब मैं आता हूँ, सब कुछ दूँ तुझे, स्तुति दूँ तुझे, आशीष भी दूँ तुझे, हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु। करीब मैं आता हूँ, सब कुछ दूँ तुझे, स्तुति दूँ तुझे, आशीष भी दूँ तुझे, हैरान हूँ मैं तेरे प्यार में यीशु। महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं, देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर, विश्वास बढ़ रहा, स्तुति दिल मेरा दे प्रभु, तू मेरा
सब कुछ है, महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं। देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर, विश्वास बढ़ रहा, स्तुति दिल मेरा दे। प्रभु तू मेरा सब कुछ है, महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं। देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर, विश्वास बढ़ रहा, स्तुति दिल मेरा दे। प्रभु मेरा सब कुछ है, महसूस रूह में कर रहा हूँ मैं। देखूं जहाँ मैं महिमा चारों ओर, विश्वास बढ़ रहा, स्तुति दिल मेरा दे। प्रभु मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है। Lord Jesus, we thank you for your presence in this moment. प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए इस समय। And God, whatever I'm going to preach, you take control over it. और प्रभु, मैं जो भी प्रचार करने वाली हूँ, आप उस चीज़ को अपने ताबे में लीजिए। Help me to speak what you want people to hear. मेरी मदद करना ताकि मैं वही बातें करूँ जो लोग सुनना चाहते हैं, And help Jenny to translate. और जेनी की मदद करना ताकि वो अनुवाद कर सके, And let people get new revelations and prophecies tonight. और मदद करना ताकि लोगों को एक नया प्रकाशन मिले और नया प्रोफेसी मिले। And you take control, God. और आप हर चीज़ को अपने ताबे में लीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ, Amen. आमीन। So I'll straight away get into the sermon. ठीक है, मैं जल्द ही वचन में सीधे जाऊंगी। The topic for today's sermon is There is freedom in Jesus. और आज का टॉपिक ये है कि यीशु में आज़ादी है। John chapter 8 verse 31 and 32 says, और यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 31 और 32 कहता है, Jesus said to the people who believed in him, और यीशु ने उन लोगों से कहा जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, You are truly my disciples और तुम सच में मेरे चेले हो, if you remain faithful to my teachings. यदि आप मैंने जो भी बातों को सिखाता हूँ उसमें सही रहोगे, And you will know the truth, और यदि आप सच को जानोगे, and the truth will set you free. वो सच्चाई जो है आपको आज़ाद करेगी। This verse says, if we remain faithful in Jesus, ये वचन ये कहता है कि जब हम विश्वास योग्य रहते हैं प्रभु में, we will know the truth and the truth will set us free. हम सच्चाई को जानेंगे और वो सच्चाई जो है हमें आज़ाद करेगी। But what is truth? लेकिन सच्चाई क्या है? I want to refer to another verse. और मैं और एक वचन को आपको बताना चाहूँगी, It's in Philippians chapter 2. और ये फिलिपियों की किताब में है 2वां अध्याय, I'll read the whole verse 7 to 10. और मैं 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक पढ़ूंगी। And it says, और वचन ये कहता है, Instead, he gave up all his divine privileges. इसके बावजूद उसने अपने सारे जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन सारे अच्छी अच्छी चीज़ों को गवाया, He took the humble position of a slave और उसने बहुत ही दीन जो स्थान है उसको अपनाया, and was born as a human being. और वो एक इंसान के रूप में पैदा हुआ। When he appeared in human form, और जब वह इंसान के रूप में आया, he humbled himself in obedience to God उसने अपने आप को दीन किया और नम्र किया, and died a criminal's death on a cross. और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके उस क्रूस पर मारा गया एक पापी के रूप में। And now listen to this verse carefully. और इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना। Therefore God elevated him इसीलिए प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया to the place of highest honor और ऐसे स्थान पर जहाँ पर उनको आदर मिलता है, and gave him the name above all other names, और उनको ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से ऊंचा नाम था, that at the name of Jesus जो नाम था यीशु,
that at the name of Jesus every knee should bow कि वो जो नाम है यीशु, उस नाम के सामने सभी लोग झुकेंगे, in heaven and on earth उस स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर and under the earth. और इस पृथ्वी पर। Here the 8th verse says, यहाँ पर 8वां वचन ये कहता है, Jesus is above any other name, यीशु जो है सारे नामों से ऊंचा है and every knee shall bow before him. और हर एक घुटना जो है उसके सामने टिकेगा, Not only on earth, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं but in heaven लेकिन स्वर्ग में भी and under the earth as well. और इस पृथ्वी के नीचे भी। This simply implies और ये साधारण रूप में ये कहता है, there is nothing that is impossible for us ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे लिए नामुमकिन है when we use the name of Jesus in faith. जब हम विश्वास में यीशु का नाम लेते हैं। And this is the truth, और यही सच्चाई है that his name is above all other names कि उसका नाम जो है सारे नामों से ऊंचा है and nothing is impossible for him. और उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। Now since we know the truth, अब क्योंकि हमें सच्चाई पता है we can be free from anything on this earth. और इस पृथ्वी पर जो भी है हर एक चीज से जो है हम मुक्त हो सकते हैं या फिर आजाद हो सकते That the हैं। things that binds us, जो चीजें हमको बांध कर रखती है that's how powerful his name is. और उसका नाम सच में इतना सामर्थी है। Like the verse in John said, और यूहन्ना में जैसे वो वचन कहता है, you will know the truth and the truth will set you free. आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई जो है आपको आजाद करेगा। Jesus is the truth, यीशु सच्चाई है and when you know him, he sets you free. और जब आप उसको जानोगे तो आप जो है आजादी पाओगे। There are many things you can be free from, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप आजादी पा सकते हो, but I'll mention only 2 things here. लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीजों को बताऊंगी। The name of Jesus sets you free from sickness. यीशु का नाम जो है आपको बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। Isaiah 53:5 says, और यशायाह का किताब 53 अध्याय 5वां वचन ये कहता है, but he was pierced for our transgressions. हमारे पापों के लिए जो है उसको खिले ठोके गए He was crushed for our iniquities. और अपनी बुराइयों के कारण जो है उसको नीचे गिराया गया। The punishment that brought us peace was on him. और जो पनिशमेंट के कारण हमको आज़ादी मिली है या फिर हमको शांति मिली है वो उसके कारण था, उसके ऊपर गया। And by his wounds we are healed. और उसके मार खाने के वजह से हमको जो है चंगाई मिली। This verse is a recap of Christ's death for us on the cross. और यहाँ पर ये हमको ये बताता है कि प्रभु ने जो है उस क्रूस पर अपनी जान को दिया अपने कारण। It says that he has already taken our punishment. यहाँ पर ये कहता है कि उसने पहले से ही अपने पापों को, हमारे पापों को अपने सर पर ले लिया। And by his stripes or by his wounds we are healed. और उसके मार खाने से हमको चंगाई मिली है। Isn't sickness a punishment to our body? क्या बीमारी जो है एक बुरी बात है अपने लिए? Where we usually suffer physically, mentally and emotionally. जहाँ पर हम शारीरिक रूप से या फिर आत्मिक रूप से या फिर संतुलित दिमाग से भी हमको जो है बहुत ही नष्ट पहुँचाता है। But since we know the truth, लेकिन क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं that in his name कि उसके नाम में there is power and healing, वहाँ पर सामर्थ है और चंगाई है। you can pray and ask in faith, आप प्रार्थना करके विश्वास में मांग सकते हो and you will see yourself being set free from your sickness. और आप पाओगे कि आप जो है अपने सारे बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। I'm not saying this just for the sake of saying. और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ये चीज, I have a testimony. मेरे पास में एक गवाही है आपको Several बताने के years लिए। ago when I was 10-year-old, बहुत साल पहले जब मैं 10 साल की थी I really felt sick. और मैं बहुत ही बीमार हुई थी And even after going to several doctors, we could not find what it was. और बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद पता नहीं चला कि तकलीफ क्या थी मुझ में। And later, a doctor suggested me to get checked for tuberculosis. और एक बार ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि मैंने टीबी के बीमारी के लिए जो है मुझे चेकअप करना पड़ेगा। And unfortunately, I did have tuberculosis in my lungs. और वहाँ पर दुर्दशा की बात ये थी कि वहाँ पर ये पता चला कि मुझे टीबी है। I prayed and I was on medication and got healed. और मैंने प्रार्थना किया और मैंने दवाइयों को लिया और फिर मैं चंगी हो गई। But this TB virus left me with an infection, लेकिन वहाँ पर फिर भी जो थोड़ा सा इन्फेक्शन था वो तो रह गया and that is bronchitis. और उसे जो है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। I suffer while breathing. तो उसके कारण क्या होता है कि जब मैं श्वास लेती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। That's not the main part. और ये जो है बहुत ही बुरी बात नहीं है। It's when in 2020 the coronavirus hit planet Earth. लेकिन जब भी 2020 में जो है जब ये कोरोना वायरस का जो वायरस आया था,
I was really scared that I have breathing problem. तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझे पहले से ही श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है, And I was scared in my mind that for sure I would get infected. और फिर मेरे दिमाग में ये बात चलती रहती थी या फिर मुझ में ये डर था कि शायद वो वायरस जो है मुझे जल्दी अफेक्ट करेगा, Because my immune system was weak. क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही कमज़ोर था. And I was seeing on the news that it is related to your lungs, you can't breathe and you will die at last. और फिर मैं न्यूज़ में देख रही थी कि ये कैसे हमारे शरीर को जो है चोट पहुंचाता है, जैसे कि हमारे लंग्स को या फिर हमारे श्वास लेने के कारण ये सारी चीज़ें जो है मुझे चोट पहुंचाएगी. But then God reminded me of this word, लेकिन फिर प्रभु ने मुझे याद दिलाया इस वचन को that I am healed by His stripes. कि मैं चंगी हो चुकी हूँ उसके मार खाने के वजह So से. every single day I declared it on myself. हर एक दिन मैंने उस वचन को अपने ऊपर जो है घोषणा किया, It's been a year almost now. और अभी 1 साल के भी ऊपर हो गया, There is no sign of any kind of sickness. और मुझ में जो है कोई भी बीमारी की कोई चिन्ह नहीं है, And I have not got infected either. और मुझे वो असर भी नहीं किया, Because I knew क्योंकि मुझे पता था, that because I knew the truth that in His name there is healing. क्योंकि मुझे पता था कि उसके नाम में, उसका नाम ही सच है और उसमें जो है मुझे चंगाई And मिलेगी, it set me free from sickness. और मुझे हर एक बीमारी से जो है मुझे आज़ादी मिली है. If you think you're constantly falling sick अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा बीमार पड़ते हो, physically शारीरिक रूप से or even mentally due to your situations, या फिर शायद मेंटली जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उन चीज़ों के कारण, I challenge you to start declaring His name मैं आपको चुनौती देती हूँ कि क्यों ना आप उसके नाम को घोषणा करें on your sicknesses, आप अपने बीमारियों पर, and you will see yourself getting set free of it. और आप देखोगे कि आपको जो है आज़ादी मिलेगी वो हर एक बीमारी से. And the second point, और दूसरा मुद्दा, the name of Jesus sets you free from addiction. और यीशु का नाम जो है हर एक जो एडिक्शन होता है, जो आपको नशा होता है, उससे भी आपको आज़ादी मिलेगी. God put this point particularly in my heart. और ये खास करके ये वचन या फिर ये बात जो है प्रभु ने मेरे हृदय पर डाली है. Addiction simply means you can't live without the thing that you are addicted to. नशा, इसका अर्थ ये है कि आसान शब्दों में आप उस चीज़ के बगैर रह नहीं सकते. It's not only drugs, ये सिर्फ ड्रग्स ही नहीं है, but can be anything that you prioritize before God. प्रभु से पहले ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप पहला स्थान देते हो वो नशा हो सकता है. Anything we use in limit is fine. हर कोई चीज़ जो हम सीमित रूप से इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है, But when we lose self-control लेकिन जब हम अपना ताबा खो देते हैं over उस that पर, thing उस चीज़ पर, and go out of our limits, अपने सीमा के बाहर जब जाते हैं, that's when it becomes the problem. और तभी समस्या आती है, That's when the addiction comes in. और तभी नशा जो है वहाँ पर आ जाता I है. want to read from Proverbs chapter 25 verse 28. और मैं नीति वचन से 25वां अध्याय पढ़ना चाहूंगी, 28 वचन. The verse says, और वचन ये कहता a है, person without self-control ऐसा व्यक्ति जिसका खुद पर ताबा नहीं होता है, is like a city with broken down walls. और ये ऐसा व्यक्ति है जो कहा जा सकता है कि ऐसा शहर है जिसकी कोई दीवारें नहीं हैं. This verse says, और ये वचन ये कहता है, if we don't have self-control, उसका मतलब ये है कि जब हमारा खुद पर ताबा नहीं होता है, we are like broken down walls of a city. और हम ऐसे दिखते हैं जैसे कि किसी शहर का कोई दीवार नहीं है, where any enemy can enter. जहाँ पर कोई भी दुश्मन जो है आपके इलाके में आ सकता है. Addiction comes when there is no self-control. और जब हमारा खुद पे ताबा नहीं होता है तभी नशा भी अपने जीवन में आता And है. then we become like one of those cities. और फिर हम उसी शहर की तरह दिखने लगते हैं जिसके कोई दीवार नहीं होते. So when we are addicted to something, जब हम किसी चीज़ के नशे में रहते हैं, our life is open for the enemy to come in and operate through us. हमारा जीवन जो है खुला रहता है जहाँ पर शैतान आकर अपना काम कर सकता है. And who don't know that the enemy comes to steal, kill and destroy. और किसे नहीं पता है कि शैतान या फिर दुश्मन जो है धाड़ करने के लिए, मार करने के लिए और घात करने के लिए आता है. So how do we get out of it? तो हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे, How do we get set free of our addictions? और हम कैसे इस नशे से जो है मुक्त पाएंगे. I have another very short testimony. और मेरे पास और एक बहुत ही छोटी सी गवाही है जो मैं आपके साथ में बांटना When the चाहूंगी. lockdown started, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई,
I was addicted to watching movies and constantly watching series. और मुझे जो है सीरीज देखना या फिर पिक्चरें देखना इससे बहुत ही लगाव हो चुका था, एक नशा जैसा हो गया था। Throughout the day, I was watching this K-dramas and C-dramas on my phone. और पूरे दिन में मैं अपने फ़ोन में बस ये ड्रामास ही देखती थी। What started as an entertainment और जो एक एंटरटेनमेंट के तौर पर शुरुआत हुआ, turned out to be my addiction. वो जो है एक मेरा नशा बन चुका I था। was watching the K-drama throughout day and night. और मैं ये ड्रामा जो है, के ड्रामा जिसे कहते हैं, वो मैं दिन रात देखती थी। It happened so I was awake the whole night to finish that one series. और ऐसा होता था कि मैं वो एक सीरीज पूरा खत्म करने के लिए पूरी रात जगती थी। And then start the new one the same night. और फिर उसी रात में जो है एक नया सीरीज भी शुरुआत कर लेती थी। Sometime I missed meetings online. और कभी-कभी ऐसा होता था कि ऑनलाइन मीटिंग्स जो है मैं उसे भी मिस कर बैठती थी, Because I was not aware of the time क्योंकि मुझे समय का पता ही नहीं लगता while था watching it on my phone. जब मैं अपने फोन में देखती थी। Here I'm not giving a statement मैं आपको एक वाक्य नहीं बता रही हूँ that it's wrong to watch series or movies. कि गलत बात है पिक्चरें देखना या फिर सीरीज देखना, But to me, I was totally into it. लेकिन मेरे लिए अगर मेरी बात कहूँ तो मैं पूरी तरह से उस पर लगाव हो चुका था And मुझे। God convicted me one day और फिर प्रभु ने मुझसे बात की एक दिन that I spent almost 9 to 10 hours a day into it. कि मैंने उस सीरीज पर या फिर पिक्चरों पर अपने पूरे दिन में जो है 9 से 10 घंटा बिताया करती And थी। it became my addiction. और फिर वो मेरा एक नशा बन चुका था। And I forgot prioritizing God in that. और फिर मैं भूल गई थी कि प्रभु को मुझे पहला स्थान देना रहता My है। life started getting affected. और मेरा जीवन जो है बहुत ही उस चीज के दौरान जो है बहुत ही असर करने लग गया था And I बुरी was तरह से। being depressed और फिर मैं बहुत ही चिंतित हुआ करती because I थी, was not spending time with God. क्योंकि मैं प्रभु के साथ में ज्यादा समय नहीं बिता पा But I रही थी। knew the truth लेकिन मुझे सच्चाई पता था that there is freedom in the name of Jesus. कि यीशु नाम में ही आजादी है। So I prayed and asked God to help me. और फिर मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरी मदद It was करना। not easy. और ये आसान नहीं था। I had the urge to watch those shows again and again. और हाँ, मुझ में ये हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बार बार देखूं, But every time I did, लेकिन जब भी मैंने देखा, I spent time with God. मैंने प्रभु के साथ में भी समय बिताया। And slowly I came out of that addiction. और फिर धीरे धीरे उस नशे से जो है मैं बाहर निकली। Now I still do watch series and movies, अभी भी मैं पिक्चरें देखती हूँ और सीरीज देखती हूँ, but it's not my addiction. लेकिन वो मेरा नशा नहीं है। I know my priorities. मुझे पता है कि मुझे पहला स्थान किसको देना है। There is no urge that I skip God and ministry and do it. मुझ में ऐसा एक लगाव नहीं है कि मैं प्रभु को छोड़कर बाकी चीज़ों पे ध्यान दूं, Like I was doing for a season. जैसे पहले मैं करती थी कुछ समय के लिए। Your addiction can be big or small, आपका नशा जो है बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, but if it's affecting your life with God, लेकिन अगर वो नशा जो है आपका रिश्ता प्रभु के साथ में जो होता है, अगर वो बुरा चल रहा है, then it's a bad one. उसका मतलब यह है कि वो बहुत बुरी चीज़ है। I challenge you to fast whatever you are addicted to. आप जो भी कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ के साथ में जूझ रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि वो एक नशा बन चुका है आपके जीवन में, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप जो है उपवास करना उसको लेकर, And spend time with God and ask Him to help you out. और प्रभु के साथ में समय बिताना और प्रभु से मदद मांगना कि प्रभु आपको मदद करे इस चीज़ को Because लेकर, in His name there is freedom. क्योंकि उसके नाम में जो है आज़ादी है। There is freedom from sickness वहाँ पर आज़ादी है बीमारी से, and there is freedom from addiction. और नशे से भी आज़ादी है। I just want to say last few lines just to conclude. और आखिरी कुछ बातों को मैं कहना चाहूँगी। In this last season and current season, और इस मौसम में जो चल रहा है अभी, we have developed a mindset of sickness, a mentality where people are getting sick all the time. और हमारे दिमागी संतुलन जो है, मतलब एक बात बैठ गया अपने दिमाग में कि हाँ, लोग बीमार होते जा रहे हैं अपने इर्द गिर्द। And since we don't have to go out and do things like before, we are getting addicted to some or the else thing and not prioritizing God. और क्योंकि हमको एक आदत सा बन चुका है जहाँ पर हम बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमको एक लगाव सा हो चुका है दूसरी बातों के लिए। I'm not blaming you because I was one of them. मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन मैं खुद उस स्थान पर एक समय पर थी। But let's all be a true Christian. लेकिन क्यों ना हम एक सच्चा मसीहा बने। True Christians are not those who don't sin. सच्चे मसीहा ऐसे नहीं होते जो पाप नहीं करते। True Christians are those who fall into sin but then rise back and never do it again.
सच्चे मसीहा वो होते हैं जो लोग पाप में गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं वहाँ से। It's fine if you're staying in that sickness and not believing God. कोई बात नहीं अगर आप उस पाप में हो और विश्वास नहीं करते हो प्रभु को। It's fine if you can't come out of your addiction. कोई बात नहीं अगर आप उस नशे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। All I want to tell you is take some courage and believe in God. मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप क्यों ना एक कदम बढ़ाएं और प्रभु पर विश्वास करें And declare His name over your situation and be set free of those things. और उसका नाम जो है उस परिस्थिति पर घोषणा करें ताकि हर चीज़ जो है आपके ताबे में रहे। Let's all pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, we thank you for this word. प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। And thank you for talking to people through this word. धन्यवाद प्रभु इस वचन के द्वारा आपने लोगों से बात की। God, I particularly pray for those who are sick. प्रभु मैं उन लोगों के लिए खास करके प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है। Let there be a rise in their faith level. हम प्रार्थना करती हूँ कि उनके विश्वास में जो है बढ़ोतरी हो And let them get healed in your name. और उनकी मदद करना ताकि वो लोग आपके नाम में चंगाई पाए। And God, I pray for those who are addicted to somebody else. और हम प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों के लिए जो नशे में है कोई ना कोई बातों को लेकर Let them get addicted to you, Jesus. हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग आपके नशे में हो And you mend their lives. और आप उनके जीवन को सुधारना, You take control. आप उनको अपने ताबे में In लेना। Jesus' name I pray. यीशु नाम में मैं प्रार्थना करती Amen. हूँ, आमेन। If you're watching this video for the first time, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो or you don't know who Jesus is, या फिर आपको नहीं पता है कि यीशु कौन है, Jesus is this awesome God who came from heaven to earth in the form of human being. और यीशु वो सच्चा खुदा है या फिर इतना खूबसूरत खुदा है जो उस पृथ्वी से इस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया And gave his life for you and me. और वो आपके और मेरे लिए अपने जीवन को बलिदान And किया rose up again और फिर एक बार जी उठा so that we can have eternal life. ताकि हमको जो है अनंत काल का जीवन मिल If you want to सके। accept Jesus in your life, यदि आपको यीशु को अपने जीवन में अपनाना है pray this prayer after me. इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलना। Dear Jesus, प्यारे यीशु I ask for forgiveness मैं माफी मांगता हूँ for every sin I've ever committed. हर एक पाप के लिए जो मैंने अपने जीवन में किया। Wash me clean. मुझे साफ धोना I leave behind my past. और मैं अपने पिछले जीवन को पीछे छोड़ता हूँ And today I choose to follow you और आज के दिन मैं निर्णय करता हूँ कि मुझे आपके पीछे चलना है all the days of my life. मेरे पूरे जीवन भर। You are my Lord and Savior. आप मेरे पिता हो और आप मेरे उद्धार करता हो Take control of my life. और मेरे जीवन को अपने ताबे में लेना। In Jesus' name I pray. यीशु नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, Amen. आमेन। See you next week in Connect Group. ठीक है, हम फिर एक बार मिलेंगे अगले सप्ताह कनेक्ट ग्रुप में। Until then, bye. God bless you. तब तक के लिए आप प्रभु आपको आशीष करे और अपना ख्याल रखना।